Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and we continue the teaching and learning for secretarial practice. Okay, तो पिछली बार तक हमने क्या किया था? वेल, हमारा चैप्टर 1 अब तक चल रहा है. चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसके अंदर देयर हैव बीन अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी हैव कंप्लीटेड. द लास्ट टाइम दैट वी मेट आई हैड इंट्रोड्यूस्ड टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड उसके कनेक्शन में उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ओके, एंड जस्ट टोल्ड यू, बोला था कि वर्किंग कैपिटल क्या है. आज वर्किंग कैपिटल को बड़े विस्तार से इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न. क्विक रिकैप. सर, फिक्स कैपिटल क्या है? कैपिटल मतलब पैसा. आप ऐसा सिंपल शब्दों में सोच सकते हो. फिक्स कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आपको लगता है उन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जो एसेट्स आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहेगी. सो किया गया है, दिया गया है. Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets. And I gave you an example. ये पीछे मेरे स्क्रीन पे है. गाड़ी खरीदोगे, उसमें जो पैसा डालोगे वो फिक्स्ड एसेट. बट गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, गाड़ी का जो पेट्रोल है, जो आपको रेगुलरली भरना है ताकि वो गाड़ी चल सके, वो गाड़ी दौड़ सके, वो गाड़ी अगर एक जगह पर खड़ी है तो वो मतलब आप उसके सिर्फ बॉनेट पर बैठकर, ऊपर चढ़कर, दरवाज़ा ओपन करके, मे बी ना इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ ले सकते हो. दैट्स इट. बाकी वो गाड़ी कोई काम की नहीं है जब तक उसमें पेट्रोल नहीं है. तो आई रिपीट माई सेल्फ, जो गाड़ी चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए जो खर्चा आप करते हो, विच इज़ द मेंटेनेंस एंड द सर्विसिंग एंड द पेट्रोल एंड द फ्यूल, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. सो टुडे आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू कि ये वर्किंग कैपिटल क्या है. वेरी क्विकली, दीज वर द पॉइंट्स दैट वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किस बिजनेसमैन को, किस कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल कितना लगता है, ज़्यादा क्यों लगता है, कम क्यों लगता है. दीज वर द पॉइंट्स एंड द कोड वर्ड फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ दिस वॉज केयरलेसनेस क्रिएट्स स्लॉपीनेस. ऑल कंप्लीटली एक्सप्लेन लास्ट टाइम. ये आज का तो मुद्दा नहीं है. आज का मुद्दा है वर्किंग कैपिटल. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वो पैसा जो मुझको लगता है अगर मैं आपके घर की बात करूं, फिक्स्ड कैपिटल आपके घर के लिए क्या है? सर, टीवी खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है,
कबर्ड खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, बिकॉज वो तो आप एक ही बार खरीदोगे। वर्किंग कैपिटल आपके लिए घर के लिए क्या है? सर कल जाकर मार्केट से मुझको भाजी खरीदना है, मुझे मसाले खरीदने हैं, मुझे चना, दाल, चावल, ये सब हर दिन का खर्चा है, तो इसके लिए जो पैसा लगता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। दिस इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल साइकिल। राइट नाउ मैं उस पे नहीं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि फॉर्मूला वाइज working capital means what and what are the examples of working capital. You see, formula wise there is a particular author, okay, who has said कि working capital का मतलब है current asset subtract current liabilities. Okay, let me show you that and then I'll come and show you कि ये मैंने मेरे पीछे आपको क्या दिखाया. Okay, so here goes. Gerstenberg defines it as the excess ज़्यादा of current assets over current liabilities. So current asset minus current liabilities is the formula from Gerstenberg for finding out working capital. Now, very importantly, when you do current asset minus current liabilities, you get something called as NET, net working capital. तो प्लीज नोट, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम आएगा। कहाँ पर? मे बी ऑब्जेक्टिव्स में कानाका पे तो आ जाएगा कि गेर्स्टेनबर्ग के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। आई कम टू दैट कि सर करंट एसेट आप क्यों ले रहे हो, करंट लाइबिलिटी आप क्यों ले रहे हो? कुछ लोग तो ये पूछेंगे सर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो वो क्या होता है, मेरे को वो ही नहीं पता। डोंट वरी, आई कम टू दैट। हाँ, गेर्स्टेनबर्ग का मुझको तस्वीर नहीं मिल पाया। हाँ, आई एम गेसिंग वो काफ़ी पुराने हैं, बट JS मिल इनका फोटो मुझे डेफिनेटली मिल पाया। एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे बदलाव करता हूँ तो अगेन वो क्लियर हो जाएगा। सो बिलो प्लीज देखिए। सो JS मिल ने वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या बोला है, क्या डेफिनेशन दिया है? प्लीज रीड। द सम ऑफ टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। वेरी सिंपल, करंट एसेट अगर आपको पता है तो आपको वर्किंग कैपिटल पता है, तो आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। सो व्हेन यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग, you get JS Mill के हिसाब से working capital. Now that is not called as net working capital, that is called as gross working capital. Two authors, two thinkers giving two different opinions. Gerstenberg says आपको current asset से current liability minus करना पड़ेगा, then आपको working capital मिलेगा, उसका नाम है net working capital. JS Mill says कुछ माइनस मत करो, करंट एसेट ढूंढ लो, वही वर्किंग कैपिटल है। दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कीप इन माइंड। राइट नाउ लेट मी टेक यू बैक एंड शो यू कि सर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी क्या होता है एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ओके, लेट्स सी। सो करंट एसेट मतलब एक साल का एसेट, करंट लाइबिलिटी मतलब एक साल का लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स अरे कितने सारे हैं, ये मेरे बगल में देख लीजिए आप। तो यू गेट कैश एंड बैंक करंट एसेट, एक साल का होता है। डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। सो दीज आर वो एसेट जो एक साल में मुझको पैसा देंगे, एक साल में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, नहीं, वो तो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट। ओके, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? एक साल में आप किसको पैसा दोगे? हुम विल यू पे? क्रेडिटर को पैसे दूंगा, बिल पेबल को पैसे दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग रेंट को पैसे दूंगा, ये तो सब मेरे को देना है ना। तो करंट एसेट एग्जांपल्स इधर है, पूरा लिस्ट है। करंट लाइबिलिटी, दिस विल नॉट कम इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू यू बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड, बट येस, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट थिंकर्स हु हैव गिवन देयर ओपिनियन ऑन वर्किंग कैपिटल विद टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। मैंने ये खुलासा आपको कर दिया। ओके, राइट नाउ थोड़ा मैं आपको जो साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल है मैं आपको वो समझाता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिकल फ्लो? देखो, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 1 रुपया इन्वेस्ट करता है ना, होल्ड ऑन ना, मेनी ऑफ यू वुड बी सर बिजनेस में कौन सा बिजनेसमैन 1 रुपया इन्वेस्ट करता है? 1 रुपया मिनिमम है, मुझे पता है वो मल्टीपल्स ऑफ रुपीज डालता है। 10 लाख कोई बड़ा बिजनेस रहेगा तो 10 करोड़ भी डालेगा, उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट करेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब यहाँ पे कैसा आ जाएगा? सिंपल, 1 रुपये पे रखते हैं। अगर मैं 1 रुपया बिजनेस में डालता हूं
तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 1 रुपया मेरे पास आ जाए। मतलब ऐसे, हाँ सर ले लो ना, हो गया अपने पास आ गया। नहीं 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 नहीं, वो 1 रुपया काम करके मेरे पास आ जाए। अच्छा 1 रुपये से क्या काम होगा? देखो भाई, अगेन लिटरली 1 रुपये की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ये 1 रुपये से बिजनेसमैन करता क्या है, मे बी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और उसके साथ में वो पहले माल खरीदेगा। ओके, कोई भी अगर रास्ते पे चाय बेचता है तो पहले चाय बेचने के पहले उसको चाय पत्ती तो खरीदनी पड़ेगी, उसको दूध तो खरीदना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माल खरीदता है। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो माल को पकाता है, मतलब उसको वो प्रोडक्शन में लगाता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। ओके, WIP यहाँ पे वर्ड है, WIP का फुल फॉर्म क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, हाँ, तो मतलब ये अभी खाना बन रहा है, खाना जब बन जाएगा तब उसको क्या नाम देंगे? फिनिश्ड गुड्स। खाना बन गया, चाय बन गया, अभी क्या करने का? अभी कस्टमर ढूंढ के इसको बेचो, क्योंकि वही कस्टमर मेरे को मेरा क्या लौटाएगा? 1 रुपया। What is working capital cycle? Working capital cycle. Well, it is the money that a businessman invests and the time that it takes for that money to come back. तो अगर मैंने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए 1 लाख रुपया डाला है, तो वो 1 लाख कितना टाइम लेता है मेरे पास आने के लिए? टाइम लेगा, मंडे को डालोगे तो ट्यूसडे को नहीं मिलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आज का मुद्दा है। राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। दिस इज अ साइक्लिकल फ्लो, कि जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होता है, वहीं पे दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहिया होता है ना, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, खत्म नहीं होता। उसी तरह कोई भी बिजनेस में उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्किंग कैपिटल साइकिल। लॉन्ग टाइम बैक आपको ना उन्होंने वाटर साइकिल पढ़ाया होगा, आई थिंक ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, ज्योग्राफी हो सकता है, साइंस हो सकता है। हाँ, मतलब क्या है, द सन ड्यू टू इट्स रेज हीट्स अप द वाटर इन द ओशन, वो भाप बनकर ऊपर जाता है, बराबर। फिर ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स में प्रेसिपिटेशन होता है फॉर डिफरेंट फैक्टर्स, एंड रेन बनकर वो वापस से नीचे आता है, बह के वही इवेंचुअली घूम फिर के तालाब से, नदी से, नाले से होकर समुद्र में चला जाता है और वापस से वो साइकिल स्टार्ट होता है। समथिंग वेरी वेरी सिमिलर। ओके, कमिंग बैक टू आवर मेन मुद्दा टुडे, एंड व्हाट इज दैट? नॉट द डेफिनेशन हमने कर लिया, नॉट द फॉर्मूला, वो भी हमने कर लिया। फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, व्हाट डज दैट मीन कि कौन से बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा और क्या डिटरमाइन करेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, देयर आर हाउ मेनी? देयर आर मेनी। स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ बिजनेस? कि बिजनेस किस चीज का है। ओके, पीछे क्या तस्वीरें आई है, अमूल दूध आया है, ये तो हर दिन बिकता है। अंडे आए हैं, वेल जिन लोग अंडे खाते हैं वो नॉर्मली हर 2 दिन में तो खाते ही रहेंगे। लोकल ट्रेन आया है, अरे इसमें तो लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, कोविड नहीं है तो ओके, तो भी लोग कितना ट्रैवल करते हैं। और BEST बस, इसमें भी लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। नाउ व्हाट डज नेचर ऑफ योर बिजनेस मीन? इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस विच इज नेसेसिटी, मेरे घर पे अगर येस्टरडे, जो एक्चुअली हकीकत है, अमूल दूध की, ये अमूल दूध जो सामने डिलीवरी नहीं हुई, 2 पैकेट आते नहीं आए, बाद में मैसेज आया ड्यू टू सम ऑपरेशनल डिफिकल्टी वी कुड नॉट सेंड यू योर मिल्क पैकेट। आई एम लाइक, अरे तुमने दूध भेजा नहीं, अभी चाय कैसे बनेगा? मेरी बीवी तो गुस्सा हो जाएगी बिना चाय के। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, एवरीबडी बाइज मिल्क एंड एवरीबडी pays for that milk, not after 2-3 years, after maybe few days or 1 month, every month तो पे करना ही करना है। So यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस जो दूध का है, अंडे का है, वेस्टर्न रेलवेज या ट्रेन का है, बस का है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, हर दिन पैसा आएगा।
ट्रेन के काउंटर पे कितना पैसा जमा होता है, क्योंकि इतना लोग पब्लिक ट्रैवल करते हैं। बीईएसटी को भर भर कर जो अलग अलग बैंक्स है उन लोगों का डील है बीईएसटी के साथ कि आपको छुट्टे मिलते हैं, वो छुट्टा आप हमारे पास आके डिपॉजिट कीजिए। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इनको हर दिन पैसा मिलता है क्योंकि ये नेसेसिटी का सामान बेचते हैं। अगर यही आप रेफ्रिजरेटर बेचो तो हर दिन तो बिकता नहीं है, ओके। अगर यही आप एसी बेचो हर दिन तो बिकता नहीं है, हाँ, तो फिर आपको ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि आपका ही पैसा आने में इतना टाइम जा रहा है, आपका माल बिकने में टाइम जा रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप क्या बिजनेस करते हो। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस जहां पर धड़ 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 आपका प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा भी जल्दी आता है, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा। बट अगर आपका माल बिकने में टाइम जाता है तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ बिजनेस? अरे तुम्हारा बिजनेस छोटा है, बड़ा है। इफ योर बिजनेस इज स्मॉल सो automatically you will require less money. If your business is big, many branches, तो you will require more money. Your product, यहाँ पे देखो वैक्सीन्स पैक किए जा रहे हैं, so every company, pharmaceutical company, laboratory that is making these vaccines, they are making the vaccine in bulk. उनके बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों को पूरे नॉट देश में, पूरी दुनिया में सप्लाई करना है। हाँ, तो फिर उन लोगों को एवरी कंपनी, वेदर इट इज फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ओके, और चाइना की कोई कंपनी रहेगी साइनोवैक करके है, रशिया की कोई कंपनी रहेगी स्पुतनिक करके है, या इंडिया के अंदर कोविशील्ड रहेगा, कोवैक्सीन रहेगा, ये सारे कंपनीज ने अपने अपने गवर्नमेंट को कहा आपको अगर वैक्सीन चाहिए आप प्लीज हमको पैसा दो। क्यों? क्योंकि हमको रॉ मटेरियल खरीदना है। वो जो वाइल में, जो ग्लास बॉटल में वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाएगा, वो ग्लास हमको मंगवाना है, उसके ऊपर का कवर हमको मंगवाना है। वी हैव टू बाय, ये सब रॉ मटेरियल है, वी रिक्वायर इट, प्लीज गिव अस मनी। क्योंकि उन लोगों को इतनी मात्रा में अपना प्रोडक्ट बनाने का था। सो साइज पे डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वेरी सिमिलर टू साइज। मतलब क्या है, देखो भाई, अगर आप वड़ा पाव बेचते हो, समोसा, मसाला डोसा, इडली, ओके, बट आप रास्ते पे एक ठेला लगाते हो, कस्टमर बहुत है आपके पास, बट देन दुकान भी तो आपका एक ही है, ओके, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा बिकॉज दुकान ही की है। बट अगर आपके दुकानें हैं, ओके, जंबो वड़ा पाव, जंबो वड़ा पाव, जंबो वड़ा पाव, मतलब सब वहाँ आप ही का नाम छाया हुआ है, तो भैया आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जितने आप सैंडविच बनाते हो एक ही जगह पे और आप ही काम करते हो, तो एक दिन में आप कितना 30, 40, 50 सैंडविच बनाओगे, ओके। चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा ड्यूटी करोगे तो 100 बनाओगे, बट दैट इज इट, not more than that. But if you have got a big shop and if you have got multiple shops, then you may be making around 1000 2000 sandwiches and selling, तो फिर automatically raw material के लिए आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। So nature of business, size of business, volume of business, these are very similar points connected to fixed capital requirement also. Production cycle, what do you mean by that? Very very important, थोड़ा technical है but hopefully आपको समझ में आएगा। So प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है, देखो, जब एक शेतकरी मतलब फार्मर, ओके, बीज खरीदता है तो सबसे पहले वो जो बीज खरीदता है ना, सीड, ओके, उसमें जो पैसे डालता है वो वर्किंग कैपिटल का पैसा है। अभी अगर वो आज खरीदेगा तो क्या कल उसको पैसा वापस मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन साइकिल काफी टाइम लेता है। अच्छा, मतलब समझाओ सर। पहले वो बीज खरीदेगा, वो अपने पूरे खेत को कल्टीवेट करेगा, ओके, खुदाई करेगा, उसको सो करेगा, पानी देगा, सींचेगा, एंड देन बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट इट टेक्स इट्स टाइम, 3 महीने 4 महीने डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, फिर जाके वो फसल पैदा होगी, फिर इसकी कटाई होगी, कटाई करने के बाद में प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जाकर उसको मार्केट में बेचा जाएगा, फिर पैसे मिलेंगे। अरे ऐसा होते होते तो 5-6 महीने चले गए, कुछ बड़े बड़े क्रॉप्स में तो 10 महीने चले गए। हाँ,
इसको कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। तो मतलब आज आप खरीदते हो बीज और 8 महीने बाद आपको उसका पैसा मिलने वाला है, क्योंकि वो मार्केट में 8 महीने के बाद बिका है। आपका प्रोडक्शन साइकिल तो बहुत लंबा है, आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि आपको पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं अभी तक। हाँ, बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे है कि मतलब सुबह 9 बजे को चालू किया, जैसे ब्रेड पाव हम सभी लोग खाते हैं बराबर, वो जैसे ही बनता है मे भी 2 या 3 घंटे में दुकान में पहुंच जाता है और बिक भी जाता है जल्दी से। क्यों? क्योंकि लोग खाने के लिए तैयार है। ओके, उन लोगों को अगर घर पे कुछ बनानी है तो वो ब्रेड खरीद के खा लेंगे। हाँ, तो फिर ऐसे जो बेकरी होते हैं उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो फास्ट है। इधर पाव बनाया, उधर डिलीवर किया, उधर कस्टमर ने खा लिया, पैसे आ गए, 1 दिन में डन तमाम। नेक्स्ट, business cycle. What do you mean by business cycle? Well, every country has a different economy. Some economies are very good, okay, progressive, increasing, up. But some economy are facing recession, and especially because of COVID, there are many countries where the problems, okay, have increased. Why? People have not been able to go to job. They want to, but they can't. Okay, tourism is affected a lot. Okay, so there are many sectors. Airlines, hotels are closed. So I repeat, if all of these things are happening, तो क्या होगा? इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, इकोनॉमी घट जाएगी। तो अगर इकोनॉमी अगर घटेगी तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी तो घटेगा, और अगर वो भी घटेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आपको कम लगेगा। हाँ, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ओके उसके पीछे जेट इंजन लगे हैं, वो इकोनॉमी ऊपर कहते हैं कि भाई कोविड स्टार्टेड इन चाइना एंड देयरफॉर टिल नाउ दे हैव ऑलमोस्ट सबको उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है, उनकी पब्लिक को। ओके, और उनकी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। तो बैक वापस से प्रोडक्शन हो रहा है, वापस से लोग काम पे जा रहे हैं, वापस से रिक्वायरमेंट खाने पीने की इसकी बढ़ गई है। सो ऑटोमेटिकली द कंपनीज दे आल्सो प्रोड्यूसिंग मोर, पब्लिक को चाहिए, एंड देयरफॉर व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग मोर दे रिक्वायर मोर मनी। तो आई रिपीट, बिजनेस साइकिल डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर इकोनॉमी की हालत बुरी है, खस्ता है, ओके, देन ऑटोमेटिकली डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन करके क्या मतलब है, तो वर्किंग कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके, होपफुली बिजनेस साइकिल आपको समझ में आ गया। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल? देखो भाई, जब आप माल खरीदते हो फ्रॉम सप्लायर, परचेस करते हो तो पेमेंट करना पड़ता है, बट जब आप माल बेचते हो कस्टमर को तो आपको पैसा लेना पड़ता है। बट टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल का मतलब क्या होता है? इफ you have to pay the supplier fast कि पहले पैसे दो बाद में माल लो, तो you require more money। और अगर आपने प्रोडक्ट जो बनाया कस्टमर को बेचा, कस्टमर को खुश रखने के लिए आपने उसको बोला 3 महीने बाद पैसे दे, अरे अपना पैसा अटक गया। So if you have to pay immediately to the supplier, you require more money. If the customer takes more time to pay you back, you require more money, क्योंकि आपका पैसा तो अटक गया ना। So that is the meaning of terms of purchase and sale। हाँ, अगर सप्लायर हमको बोलता है आराम से पैसे दो, अच्छी बात है, हमारे पैसे बच गए, I will require less। और मेरा कस्टमर मुझको जल्दी पैसे देगा तो मेरे पास पैसे हैं, then I will require less working capital। So it all depends upon terms, conditions, कि जब मैं माल लेता हूँ मैं पैसे कब देता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मुझको पैसे कब मिलते हैं, और उसके ऊपर जब जैसे वो कम ज़्यादा होता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट मतलब उधारी। कस्टमर को आप जो उधारी देते हो, यू सी एवरी बिजनेस हैज टू गिव उधारी। किसी को 2 महीना, किसी को 3 हफ्ता, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना। एवरी बिजनेस कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए उनको देना पड़ता है उधारी। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट, 3 हफ्ता दिया कस्टमर को, 3 हफ्ते बाद पैसे मिलते हैं, क्या उस पे आपका कंट्रोल है?
या आपने बोला 3 हफ्ता, 3 हफ्ते के बाद में व्हेन यू आर कॉलिंग अप द कस्टमर, कस्टमर सेज अरे नहीं यार पैसे नहीं है, मैं ना 2 हफ्ते और बाद पैसे दूंगा, तो आपका काय का कंट्रोल है? ओके, आपके हाथों से लगाम निकल गई है, वो घोड़ा दौड़ रहा है अपने हिसाब से। यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर कस्टमर। कंट्रोल है कि नहीं? इफ यू हैव कंट्रोल दैट मीन्स यू आर कलेक्टिंग योर मनी फास्टर। योर वसूली डिपार्टमेंट, हर कंपनी में वसूली डिपार्टमेंट होता है भाई, मतलब बोलने के लिए दिस इज अ बम्बईया लैंग्वेज, वसूली डिपार्टमेंट। हाँ, थोड़ा ढंग का रिकवरी डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट, तो भी उन लोग वसूली तो कर रहे हैं, दे हैव टू डू दैट, बिकॉज अगर वसूली नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो अपनी गाड़ी कैसे चलेगी? अपनी गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा? हाँ, सो क्रेडिट कंट्रोल, डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर क्रेडिट? ओके, ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन दिया, 2 का 4 दिन हो गया, 4 का 6 दिन हो गया, फिर तुम्हारा पैसा आने वाला नहीं है। यू हैव टू, गाड़ी आपकी है, ड्राइवर आप हो, कंट्रोल आपके पास में, स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली आपके पास में होना चाहिए। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, व्हाट डज दैट मीन? वेल, सम पीपल, सम बिजनेसमैन आर हैप्पी, दे आर लाइक बहुत हो गया, मैं ना महीने में 2 लाख कमाता हूं, 2 लाख बस, मेरे को और नहीं कमाने का है। अच्छी बात है, तो दैट मीन्स यू डोंट वांट योर बिजनेस टू ग्रो, यू आर हैप्पी विद, यू आर हैप्पी एंड कंटेंट। नहीं बस यार कौन टेंशन लेगा, 2 ब्रांच 3 ब्रांच, ओके, मुंबई में, मुंबई के बाहर जाओ, कानपुर में, अहमदाबाद में, गुजरात में, केरला में, अरे अरे वो टेंशन होता है, मेरे को नहीं चाहिए। नो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बट नॉट एवरी बिजनेसमैन इज लाइक दैट। देयर आर मेनी businesses that keep in mind growth. Ola, this is a Ola electric scooter. Ola पहले क्या थी? राइड शेयरिंग, कैब शेयरिंग। ओके, उनके खुद के कैब्स नहीं थे, वो कैब्स वालों को कस्टमर लाकर देते थे उनके ऐप के द्वारा, और कुछ कमीशन पे काम होता था। अभी ओला ने बोला नहीं वही काम हमारा नहीं है, नॉट जस्ट इन इंडिया, Ola is in India as well as Ola is in UK and in many other countries in the world. Expansion. And then Ola said, वो बहुत हो गया, अभी हम खुद का इलेक्ट्रिक टेस्ला बेचती है ना, हम खुद का बनाएंगे। So obviously this is your plan, you require more money. If you're going to make a vehicle, तो obviously you require acres and acres of property. ये व्हीकल बनाने के लिए टायर नहीं चाहिए, ये एलईडी नहीं चाहिए, ये हैंडल नहीं चाहिए, अरे बाबा पैसा लगता है। हाँ, पीछे देयर इज अ कंपनी इन बैंगलोर बाय द नेम ऑफ प्रवेग, उन्होंने ये टेस्ला जैसे ही बैटरी की गाड़ी बनाई है, क्वाइट गुड, बट दिस इज द ओनली 1 or 2 कार्स दैट दे हैव मेड। दे हैव अ प्लान कि नो वी विल मेक मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक दिस। अभी अगर तुमको ऐसे 500 या 1000 गाड़ियां बनानी है, यू विल रिक्वायर ना अ लॉट ऑफ मनी, बट देयर प्लान इज टू एक्सपांड। Their plan is not to make only 1-2 cars, ये तो बस डेमो मॉडल है। Expand, they will require a lot of money, okay? तो ऑटोमेटिकली उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एबिलिटी। What do you mean by management ability? See how good a car, how efficiently एक गाड़ी चलती है depends upon the चालक of that car. चालक मतलब ड्राइवर, ओके? तो अगर एक ड्राइवर जानता है कि भाई गाड़ी को फास्ट स्लो अगर मैं करूंगा तो गाड़ी के पार्ट्स ज्यादा घिसेंगे और पेट्रोल ज्यादा लगेगा। पर अगर एक ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड है, ओके, और वो जानता है, देखो ना गाड़ी को ना एक कांस्टेंट स्पीड पे रखो, एकदम फास्ट भी नहीं कि हमको जैसे ही ट्रैफिक लगेगा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा एकाएक, नहीं, कॉन्स्टेंटली आराम से गाड़ी जानी चाहिए। जब वो ज्यादा टाइम पे एक स्पीड पे जाती है, अप डाउन नहीं होती, पेट्रोल कम लगता है, गाड़ी के पार्ट्स कम घिसते हैं। सो आई रिपीट, गाड़ी ज्यादा चलती है, बेटर परफॉर्मेंस देती है। तो माय डियर, मैनेजमेंट इज द ड्राइवर ऑफ अ बिजनेस। इफ द मैनेजमेंट नोज कि जो हमने प्रोड्यूस किया उसको हमने टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया, जल्द से फट से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हाँ, देन दैट मैनेजमेंट इज अ केपेबल मैनेजमेंट। क्योंकि जो गुड्स बनाया उन्होंने अपने गोदाम में नहीं बचा के रखा, डिस्ट्रीब्यूट किया, फट फट कस्टमर्स ढूंढे और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पैसा जल्दी आएगा, ऑटोमेटिकली और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आई रिपीट, इफ द मैनेजमेंट इज केपेबल एंड दे नो कि जो प्रोडक्शन किया है उसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, पैसा आएगा, फिर से प्रोडक्शन करना है, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है,
ये चलता जाएगा। ऐसे मैनेजमेंट अगर होगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका कम रहेगा, क्योंकि आपका पैसा अटक नहीं रहा है, आपका प्रोड्यूस गुड्स प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। बट अगर आपकी मैनेजमेंट ही थकी हुई है, उनको आइडिया ही नहीं है कि माल बना दिया, क्या रखा है गोदाम में रखे रहे, कैसा बेचने का पता नहीं, किसको बेचने का पता नहीं, अरे यार कैसा मैनेजमेंट है। ओके, पूरा माल बना के गोदाम में रख के सड़ रहा है वो माल, हाँ तो फिर तो तुमको गोदाम का रेंट देना है, माल बिक नहीं रहा है तो पैसा तो लगेगा ना आपको। योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ योर मैनेजमेंट। नेक्स्ट लास्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आर बैंक्स बिजनेसमैन रिक्वायर कॉन्स्टेंट मनी बिकॉज दे हैव टू कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कभी कभी उनकी जेब में पैसा नहीं रहता है। सो इन दैट सिचुएशन व्हेन दे गो टू अ बैंक फॉर हेल्प, ओके, दया धर्म के लिए नहीं, वो इंटरेस्ट देंगे, बट लोन के लिए जाते हैं। डू द बैंक्स गिव मनी क्विकली टू द बिजनेसमैन? क्वेश्चन। ओके, अगर बैंक्स आर विलिंग, यस, डरो मत, आपको जब पैसा लगेगा हम आपको पैसा देंगे। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द firm as and when required, the need for working capital is reduced, क्योंकि पैसा जल्दी जल्दी आ जाता है। बट इन मैनी अपने ही देश में बैंक्स के साथ में इतना फ्रॉड हुआ है, इतने बिजनेसमैनों ने इतना पैसा बैंक का लूटा है, दैट दीज बैंक्स अभी शक की निगाह से वो सबको डाउट, सबको वो क्या लगाते हैं ना, माइक्रोस्कोप का चश्मा लगा के देखते हैं, ये भी चोर है कि ये भी चोर है कि ये भी चोर है, और वो पैसा देते नहीं है। बोलते नहीं हमने उसको पैसा दिया था, वो पैसा लेके भाग गया, हमने उसको पैसा दिया था, वो यूके लेके भाग गया। अरे अगर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो बिजनेसमैन जो एक्चुअल हकीकत में मेहनत कर रहे हैं, उनका पैसा जब उनको ज़रूरत है मिलने वाला नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा बैंक से ईजीली मिलता नहीं है। दीज आर द 10 फैक्टर्स दैट आर कनेक्टेड टू व्हाट the requirement and determining the working capital requirement. And like in many lectures, we end the lecture by these are the 10 factors put together with a code word कि how do I remember this sir, याद कैसे रहेगा मेरे को? Well, the good thing is almost my name Steven sir does not teach what? PCMB. So does Steven sir teach accounts? Yes. Eco? Yes. OC? Yes. SP? Yes. But PCMB, physics, chemistry, maths, biology, no, वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है, वो हमसे हैंडल होता नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं वो पढ़ाता नहीं हूँ। नाउ फ्रॉम दिस, Steven sir does not teach PCMB. आपको क्या क्या आंसर मिलेगा? वेल लेट्स सी। साइज ऑफ बिजनेस, स्टीवन, फ्रॉम द वर्ड स्टीवन। टर्म्स ऑफ परचेसेस एंड सेल्स, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किया। नेचर ऑफ बिजनेस, ओके, सो द वर्ड स्टीवन, दैट्स नॉट माई एग्जैक्ट नेम, जस्ट टू टेल यू, ओके, उसमें एक अल्फाबेट मिसिंग है, नेवरदलेस एटलीस्ट वो आपको याद रहेगा। PCMB से क्या मिलता है? वो सर डज नॉट टीच इज जस्ट टू मेक अ फ्रेज दे। PCMB से क्या मिलेगा? P से प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट कंट्रोल, बिजनेस साइकिल, एंड M से मैनेजमेंट एबिलिटी। ओके, सो वो M ऊपर होना चाहिए और ये बिजनेस साइकिल नीचे होना चाहिए। बट नेवरदलेस आप समझ जाओगे कि PCMB से आपको क्या क्या मिलना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, B नीचे, मैनेजमेंट ऊपर, बट दैट डज नॉट मैटर। आपको PCMB से एटलीस्ट होपफुली ये पॉइंट्स याद आएंगे। सो आई रिपीट माई सेल्फ, एज ऑलवेज आई हैव ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली सेड दिस कि वट एवर कोडिंग, वट एवर वर्ड्स और वट एवर फ्रेज या सेंटेंसेज यहाँ पे बनते हैं, इट डज नॉट ऑलवेज मेक परफेक्ट सेंस, बट आप टेक्स्ट बुक में ये लिख के रख सकते हो ताकि आपको ये समझ में आ सके। Okay, so I repeat myself. Steven sir does not teach. It's a negative phrase, but आपको positively the factors affecting the working capital requirement definitely याद रहेगा। Okay, so आज के लिए my dear इतना ही रखते हैं, क्योंकि next time जब मिलेंगे तो मैं ये जो मेरे पीछे आया है ना
फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये मैं जल्दी से डिस्कस कर लूँगा, और उसके बाद में जो ये चैप्टर का लास्ट हिस्सा है कैपिटल स्ट्रक्चर वो मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगा. सो आई होप दैट द कोड वर्ड विच वॉज गिवन टू यू टू रिमेंबर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको समझ में आ गया है. और अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ लेक्चर को लाइक कर देना है. ओके, एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली वो पूछ सकते हो. उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो अच्छा काम भी आप कर दीजिए. एंड दैट्स प्रिटी मच इट. अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल मीट यू क्वाइट अर्ली विथ द continuation of the balance part of this particular chapter. तो thankfully ये भी chapter हो जाएगा and we can move on to our chapter number 2. So I hope you have understood everything in this lecture. Till the time we meet again, अपना ख्याल रखिए, अपने छोटों का, अपने बड़ों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए. Good day to all of you. God bless. Bye for now.